security. Okay, so I briefed you in the first class that what is social security. Then the second thing is what are the types of social security, right? ESI, Employee State Insurance Act 1947, is a social security legislation. This legislation covers how many types of social security? Remember? 6. 9. Yes, ma'am. Nine. Nine types social of- security. 9. Name all those social security. Medical security. चलो देख के ही And, बोलो. I don't expect you to learn it. देख के बोलो, जहाँ लिखा था वो ले देख के बोलो. आज हम थोड़ा डिटेल इसका लिखवा देंगे so that you don't forget it. Tell me, start करो. कोई एक start करो. Ma'am, sickness benefits, maternity benefits, disablement benefits, Disablement. disablement, dependent benefits, medical facility after retirement, rehabilitation facility, unemployment allowance, और बस यही तो था. ना हो गया कवर कर लिया. फ्यूनरल बेनिफिट मिस किया तुमने शायद, इसलिए 8 हुआ. yes ma'am. Yes. So see, before that, before making you write, I'll give you a question. Abhijit, what is so funny going on in the class? Is there anything funny? मैम कुछ गिर गया था. तो इसमें हंसने की क्या बात है? Pay attention in the class. This is the last class on ESI. Okay? उसके बाद हम लोग दूसरा एक्ट शुरू करेंगे, फिर ग्रेचुटी शुरू करेंगे. ठीक है? Now, see, there were 3 commissions on labor. Labor के benefit के लिए, labor के welfare के लिए 3 लेबर कमीशंस बनाए गए. अभी तक इंडिया में 3 लेबर कमीशंस बनाए गए हैं. ठीक है? पहला था रॉयल कमीशन ऑन लेबर. द चेयरमैन वाज J.H. Whiteley. It was enacted in 1929 and the reports were submitted in 1931. The second was National Commission on Labor. It was established in 1966 under the chairmanship of Gajendra Gatkar. Okay. Third Labor Commission. देखो तुम लोगों को जितना एड ऑन में पढ़ना है, हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये ब्रीफिंग जरूरी है समझना. सारा एड ऑन सब्जेक्ट्स में जितना तुम लोगों को पढ़ना है वो तुम लोगों को ऊपर से इसी का इंट्रोडक्शन है कि व्हाट इज ईएसआई, व्हाट इज पीएफ, व्हाट इज ग्रेचुटी. तो उसके पहले थोड़ा सा हिस्ट्री जानना जरूरी है, वरना रेलेवेंस और कॉन्टेक्स्ट यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड. ओके. थर्ड लेबर कमीशन ऑन नेशनल कमीशन ऑन लेबर जो बना था, that was formed in 1999 and the reports were submitted in 2002. This was formed under the chairmanship of Shri Ravindra Verma. ठीक है? इन तीनों लेबर कमीशन से ईएसआई का क्या रिलेशन है? कि जो पहला लेबर जो रॉयल कमीशन ऑन लेबर था, उसने इसको प्रपोज किया था कि ईएसआई में इंडस्ट्रियल वर्कर्स की हेल्थ को ध्यान दिया जाना चाहिए. मैंने तुमको पहले ही क्लास में बताया कि हालत क्या होती थी उस वक्त. ईएसआई बहुत लेट बना, मतलब 1948 में बना, इनैक्टमेंट हुआ, लेकिन इसके बारे में पहला प्रपोजल 1929 से लेके 31 तक जो रॉयल कमीशन ऑन लेबर ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया, उसमें मेंशन था कि हमारे इंडस्ट्रियल वर्कर्स की स्थिति बहुत खराब है और वी शुड थिंक समथिंग अबाउट देयर हेल्थ. मैम कोई वेटिंग रूम में. Now you start writing. I'll give you some written document regarding this. थोड़ा सा कभी ऐसे मन करे कि एसआई निकाल के पढ़ो तो कुछ रहे. ऐसे ही एड ऑन सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना. स्टार्ट करो लिखना. Write down. Start writing. Who are the other people who are admitted? Switch on your cameras. Switch on your cameras.
10 participants have joined, only 5 of you have switched on your camera. Rest, please switch on so that it's easier for me also to interact. Those of you who have just joined, let me tell you, gradually switching on the camera, right? The one who is ill, except him, all of you switch on your cameras. Those of you who have just joined, let me tell you, this is the last class on ESI. You just need, I have already briefed you on what is ESI. It is a kind of social security legislation, fine, because it is an act and the central government of India is supposed, central government of India has enacted this act and the onus and the responsibility of its implementation resides in the hands of central government only. ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारा एक्ट ऐसा होता है जो जिसका इनैक्टमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन हर स्टेट में कैसा हुआ या कैसा होगा ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है. But this is not the case with ESI. ESI है, Mines Act है, ये सब का full authority central government के ही पास होता है. So ESI Act is a social security legislation. I have already told you what is social security, what are the types of social security, and how many types of social security are covered in the ESI Act. Agree, everybody? Yes, ma'am. Now start writing. I'll give you just a brief, some lines about ESI so that you can revise it whenever you feel like. Write down. The Royal Commission on Labour under the chairmanship of J.H. Whiteley (1929 to 1931). Ma'am, Under the chairmanship of J.H. Whiteley, under the chairmanship of J.H. Whiteley, proposed for the first time health insurance proposed करूं या उसको better word है recommended कर दो. Recommended for the first time health insurance for industrial workers. Health insurance for industrial workers. BP Adharkar, B.P. Adharkar was appointed as officer on special duty या डाउट होगा सुनाई नहीं पड़ेगा कोई कंफ्यूजन होगा then you ask me. BP Adharkar appointed as officer on special duty and he submitted a drafted scheme. Ma'am, officer and He submitted, उन्होंने submit किया, he submitted a drafted scheme to the government in 1944. हो गया सबका?
उसके बाद देखो, thereafter a bill was introduced in 1946 regarding enactment of legislation lastly ESI Act was passed by the central government in 1948. Okay? Okay? Everyone done? Yes, ma'am. See, ये एक्ट तो इनैक्ट हुआ था 1948 में, but what happened that it was implemented in a phase-wise manner. Why was this implemented in a phase-wise manner? Unlike other, please switch off your mute yourself unless you have to say something because it creates a lot of noise in the background. The rest of the students won't be able to hear me. Okay? Yes, I'm muted instead. Rohit Raj. Unmute you, Rohit. Mute yourself, everybody mute yourself. When I'm asking you to answer, only then unmute yourself. See, ESI Act को implement तो कर दिया गया था 1948 में, but this was implemented in a phase-wise manner. Why was this implemented in a phase-wise manner? Because what happened? इसमें medical facility का provision है ना? पढ़ा है ना तुम लोगों ने इसमें social security में? मेडिकल फैसिलिटी का प्रोविजन है, रिहैबिलिटेशन का प्रोविजन है, यानी 45% से कम जिससे बॉडी ऑर्गन्स में प्रॉब्लम होगा उसको गवर्नमेंट बॉडी पार्ट्स प्रोवाइड करती थी। रिहैबिलिटेशन में ये है और प्लस मेडिकल फैसिलिटी है। तो मेडिकल फैसिलिटीज उतनी कि इतनी बड़ी कंट्री, इतना बड़ा मास जो कि ईएसआई में कवर होगा और इतने इतने ज्यादा लोग, तो उनको प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी देने के लिए उतने हॉस्पिटल्स की भी तो जरूरत है कि नहीं? तो ये हॉस्पिटल रातों रात तो बनेगा नहीं बनेगा ना, इसीलिए इसको फेज वाइज मैनर्स में इंप्लीमेंट किया गया था। धीरे धीरे हॉस्पिटल बनाया गया और धीरे धीरे जहां जहां हॉस्पिटल्स बनते गए वहां ये प्रोविजन लागू होता चला गया। डज एनीबडी नो कि बिहार में पटना में ईएसआई हॉस्पिटल कहाँ है? कोई आइडिया? मॉडल लोग के पीछे मैम। नहीं, वो तो सीजीएचएस जो उस दिन बताया था वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल यहाँ है फुलवारी शरीफ में है। एक फुलवारी शरीफ में है और एक बन रहा है बिल्टा में। बिल्टा में बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, इट्स लाइक 14 फ्लोर। समझ में आ गया? दिस एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड, दिस एक्ट वाज पास्ड इन 1948 and it started getting implemented in a phase-wise manner, just as the hospitals and medical facilities were made more sound and sound, तभी बनाया गया। अब लिखो कि देखो ये एक्ट किन फैक्ट्रीज पे अप्लाई होता है? सारे फैक्ट्रीज पे होता है क्या? नहीं, फैक्ट्रीज दो तरीके की होती है, एक पेरिनियल फैक्ट्रीज और एक सीजनल फैक्ट्रीज। ठीक है, ये फैक्ट्रीज को दो कैटेगरी में मोस्टली डिवाइड किया जाता है, वन इज पेरिनियल एंड टू इज सीजनल। Perennial factories are those factories where the work is carried out round the year, more than 6 months. And seasonal factories are those factories where the work is carried out in certain seasons, जैसे कि open cast mining। ओपन कास्ट वो जो खुला हुआ खदान होता है, देखा है, सुना है कभी? उसमें क्या होता है कि बरसात के मौसम में पानी भर जाता है, तो पानी भर जाता है तो वहाँ काम रुक जाता है, वहाँ काम नहीं हो सकता है। That is known as seasonal factory. For a certain period of time in the year, those factories are closed. The work cannot be carried out. Right? So, ये fact ESI is implemented. ESI is applicable in only perennial factories. देखो, this act applies in all perennial factories in the country. Right now?
This act applies in all perennial factories of the country where at least 20 people are employed. 20 persons are employed. 20 लोग कम से कम जिस फैक्ट्री में रहेंगे वहां ESI अप्लाई होगा. अच्छा, अब देखो ESI तो एक सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है. ये मोस्टली लाया गया था वर्कर्स के लिए, है ना, वर्कर्स के लिए, क्योंकि उनकी हालत बहुत ही खराब थी, उनको किसी तरीके की सिक्योरिटी नहीं थी, तो उनके हेल्थ के लिए मोस्टली ESI ने उनके हेल्थ पे ध्यान दिया था ESI एक्ट में, तो उनके इंश्योरेंस के लिए इसको लाया गया था. तो क्या इसमें बहुत एलीट क्लास को आना चाहिए जिनकी सैलरी बहुत हाई है? नो. So there is a bar to which ESI applies. ठीक है, एक लेवल ऑफ सैलरी है जिस जहां तक जो वर्कर्स अर्न करते हैं उनको ESI के अंडर कवर किया जाता है. राइट डाउन. This act applies on all those employees whose monthly wage is up to 21,000. मैम रिपीट कीजिएगा. अच्छा, this act applies on all those employees whose monthly wage is up to 21,000, यानी 21,000 तक जिसकी सैलरी है सिर्फ उस पे ही ESI एक्ट अप्लाई होती है. मैम wages up to 21,000, 21,000, 21,000. लेकिन देखो इसमें भी गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन बनाया. क्या प्रोविजन बनाया कि 21,000 तक तो जो वर्कर्स हैं उनको इंक्लूड किया जाएगा, उनको कवर किया जाएगा. बट दोज हु आर डिसेबल्ड, किसी तरीके की डिसेबलमेंट थी उनको, तो उनको उनकी सैलरी 25,000 तक भी अगर उनकी सैलरी होगी तो उसको ESI में यूज किया जाएगा, सॉरी उनको ESI में कवर किया जाएगा. ठीक है, क्यों किया था गवर्नमेंट ने ये? क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो होते थे वो डिसेबल्ड लोगों को लेते ही नहीं थे. ठीक है, उनको ये बोला, उनको लगता था कि these people are not of much use to us, their productivity will not be as much as a normal person's productivity, so they used to completely not take those employees. तो गवर्नमेंट ने ये एक काइंड ऑफ एनकरेजमेंट दिया, एक काइंड ऑफ टेम्पटेशन दिया प्राइवेट बॉडीज को कि ओके फाइन, यू टेक पीपल, you take those employees who are also disabled. In case of any security that they need, the government will be paying that to them, right? क्योंकि गवर्नमेंट पे करती है ना इसके लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसीलिए. तो ये ऐसे स्टार मार्क करके लिख लो कि फॉर डिसेबल्ड एम्प्लॉय ये 25,000 है. अब ये देखो, अब एक टॉपिक दो, मतलब एक हेडिंग दो, उसमें लिखो कंट्रीब्यूशन. गवर्नमेंट कितना कंट्रीब्यूट करती है, क्या कंट्रीब्यूशन है, कितना पैसा देगी गवर्नमेंट, इसका भी कोई प्रावधान होना चाहिए ना. देयर शुड बी सम प्रोविजन ऑफ हाउ मच द गवर्नमेंट शुड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स ESI. किसी की सैलरी 10,000 भी हो सकती है फैक्ट्री में, किसी की सैलरी 15 भी हो सकती है, किसी की 21 भी हो सकती है ना. तो सबको बराबर कंट्रीब्यूशन नहीं मिलता है. इट इज इन प्रोपोर्शन, इट इज इन सर्टेन प्रोपोर्शन टू द वेज दैट और सैलरी दैट यू आर अर्निंग. राइट डाउन कंट्रीब्यूशन. The employer shall pay 3.25% of the wage of employee. Ma'am, how much percent? 3.25. And the employee shall pay. एम्प्लॉइज का भी एक कंट्रीब्यूशन लिया जाता है इसमें, लेकिन वो बहुत मिनिमल कंट्रीब्यूशन है. एंड द एम्प्लॉय शैल पे 0.75% of his wage.
समझ में आ गया? The employer is supposed to pay 3.25 and the employee is supposed to pay 0.75% of the wage. लेकिन इसमें भी एक प्रोविजन था ये कि गवर्नमेंट ने कहा कि अगर मान लो किसी को बहुत ही कम पैसा मिलता है, 5,000 मिलता है या 4,000 ही देती है, ये थोड़ा रिवाइज करने की जरूरत है क्योंकि अब इतनी कम सैलरी मिलती नहीं है वर्कर्स को। तो गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि ठीक है 0.75% सैलरी विल बी पेड बाय द एम्प्लॉय एज पर देयर पार्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन, बट स्टिल दोज एम्प्लॉयज हु अर्न up to rupees 137 in a day they will be exempted. ठीक है, 0.75% तो पे करना होगा एम्प्लॉयज को, लेकिन जिनकी सैलरी 0.75% भी 137 से ज्यादा है बस वही पे करेंगे। यानी एक्स्ट्रा मार्क करके लिख लो कहीं पे भी कि 137 तक पर डे जो कमाते हैं उनको एक्सेप्टेड है, वो कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, उनका सारा कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय करेगा। कंट्रीब्यूशन लिखा हो गया, ये कंट्रीब्यूशन समझ में आ गया ईएसआई का। अब ये लिखो नेचर ऑफ बेनिफिट, टॉपिक तो नेचर ऑफ बेनिफिट। नेचर ऑफ बेनिफिट में क्या क्या आएगा ईएसआई में, फटाफट लिखो। सिकनेस बेनिफिट लिखते जाओ फटाफट, जितना सोशल सिक्योरिटी कवर करता है। सिकनेस, मैटरनिटी, डिसेबलमेंट, डिपेंडेंट, फिर लिखो फ्यूनरल, मैम डिसेबल के बाद में डिपेंडेंट, ये डेथ कवर करता है, ठीक है। डिपेंडेंट ब्रैकेट में लिख लेना डेथ। फिर लिखो फ्यूनरल, then medical facility, then write medical facility after retirement, rehabilitation facility, and unemployment allowance last. डिपेंडेंट और फ्यूनरल में ब्रैकेट डाल के लिख लो, वो डेथ सोशल सिक्योरिटी कवर करता है, डेथ डिपेंडेंट और फ्यूनरल। तुम लोगों को बहुत डिटेल में ईएसआई नहीं पढ़ना है, ठीक है। ईएसआई बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसीलिए ऊपर ऊपर ईएसआई क्या था, ईएसआई क्या किस टाइप का सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है ये बता दिया, क्या क्या कवर करता है वो बता दिया। अब इतना डिटेल की पूरा टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है उसमें वो तुम लोगों को जानना नहीं है। एड ऑन का एग्जाम भी होता है क्या? पता नहीं मैम, फर्स्ट टाइम ही हम लोग कर रहे हैं ना।
ज्यादा डिटेल जाना नहीं है, लेकिन फिर हम बता देते हैं कि किसमें क्या है। जैसे डोंट राइट ऑल दिस, ओके, इट इज जस्ट फॉर योर ओन नॉलेज। पहला वाला पॉइंट देखो, सिकनेस बेनिफिट लिखे हो, राइट, यू हैव रिटन सिकनेस बेनिफिट। यस मैम। तो सिकनेस बेनिफिट में क्या होता है कि इसमें दो तरीके का कवर किया जाता है, एक सिकनेस बेनिफिट एंड वन इज एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट। इसमें इसमें प्रोविजन है इसका। सिकनेस बेनिफिट में क्या है, सिर्फ सुनो, लिखने की जरूरत नहीं है। सिकनेस बेनिफिट ईएसआई का सिकनेस बेनिफिट है। व्हाट इज दिस सिकनेस बेनिफिट ऑफ ईएसआई से that if the sickness of an employee extends or continues for at least 3 days and he had paid contribution for 78 days, okay, he shall be entitled for sickness benefit. The sickness benefits available will be general and specified या फिर general and extended sickness benefit. इसका मतलब कि ईएसआई में काम, आप फैक्ट्री में वर्कर काम कर रहा है, एम्प्लॉइज काम कर रहा है, और ये जो कंट्रीब्यूशन है 0.75% ऑफ हिज वेज, ये हर महीने डिडक्ट होता है उसकी सैलरी से, ठीक है। तो ये 78 डेज के लिए ये कंट्रीब्यूशन पे किया जाना जरूरी है, so that you are in condition to avail the sickness benefit. समझ में आई बात? यानी 78 डेज का कंट्रीब्यूशन आपका दिया होना चाहिए आपके सैलरी से। जोड़ लो कितना होता है, कितना महीने का कितना दिन होता है। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि अभी आपको सर्दी हुई और अभी आप एंटाइटल हो गए इस बेनिफिट के लिए। The problem, the sickness that you have, the sickness that you claim to have should continue for at least 3 days. ठीक है, 3 दिन तक वो कंटिन्यू होना चाहिए, तब आप एलिजिबल होंगे सिकनेस बेनिफिट के लिए। ओके, नाउ इसमें कवर होता है जनरल सिकनेस बेनिफिट भी और एक्सटेंडेड भी। जैसे कि अब ये सुना है कि जैसे सिगरेट फैक्ट्री में काम करता है तो एस्बेस्टस फैक्ट्री में काम करता है, करते करते इसको एस्बेस्टोसिस हो गया, इसका लंग खराब हो गया, इसको ऑक्यूपेशनल डिजीज हो गया। सुना है? नहीं सुना है? अरे किसी फैक्ट्री में मैम कांच का वाला मैं सुने हैं। सुने हो ना, कुछ भी सुने हो ना, जैसे उसी को कहते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, यानी कि ऑक्यूपेशनल डिजीज। तुम किसी पर्टिकुलर टाइप के ऑक्यूपेशन में काम कर रहे हो, उस ऑक्यूपेशन की कंडीशंस से अराइज होने वाला प्रॉब्लम अगर तुमको होता है तो उसको कहते हैं ऑक्यूपेशनल डिजीज। जैसे एस्बेस्टस की फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनको क्या प्रॉब्लम हो सकता है, एस्बेस्टियोसिस हो सकता है उनको, ठीक है। और उसी तरीके से जो कांच वाले तुमने बताया उसमें अपना प्रॉब्लम हो सकता है, या जो लोग जैसे दवा की भी कंपनी होती है तो जहाँ पे हार्मोन्स की दवा बनती है, जहाँ पे ये हार्मोन्स की दवा बनती है, अगर कोई बहुत कंटिन्यूअस उसका टर्म्स एंड कंडीशंस है, हर एम्प्लॉय को वहाँ पर एम्प्लॉय नहीं किया जाता है उस डिपार्टमेंट में। फीमेल्स आर नॉट सपोज टू बी एम्प्लॉयड इन दोज डिपार्टमेंट्स बिकॉज वहाँ पे हार्मोन से आपको काम करना होता है, एंड दोज हार्मोन्स आर supposed to have a negative impact on your health in terms of infertility and all. Okay? तो ये occupational disease जो होती है उसका भी mention ESI एक्ट में है। बताइए बात कि उसमें 34 नोटिफाइड डिजीज है ESI में, तो वो 34 नोटिफाइड डिजीज अगर आपको उस फैक्ट्री में काम करने की वजह से हुई तब ESI में उसका भी प्रोविजन है कि उसके लिए आपको लंबी छुट्टी मिलेगी और मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। एकदम डिटेल्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें बहुत सारा डिटेल्स है कि 70% ऑफ वेज, इसका पूरा प्रॉपर कैलकुलेशन है, यू नो नीड टू गेट इनटू दोस मच ऑफ डिटेल्स। ठीक है, सेकंड पे आ जाओ। सेकंड सोशल सिक्योरिटी क्या लिखा था? मैटरनिटी। मैटरनिटी बेनिफिट के लिए प्रोविजन ये है कि फॉर एनी वुमन इफ एन एम्प्लॉय हैज रेंडर्ड अ सर्विस ऑफ 70 days in the preceding 12 months of tentative date of delivery, यानी वो जो tentative date पे छुट्टी पे जाना चाहती है, tentative date of जो डिलीवरी है उसका, say a woman wants to go for the in the month of September till August, लास्ट मंथ तक भी उसके सैलरी से उसका कंट्रीब्यूशन दिया जाना होना चाहिए, ठीक है।
उसका कंट्रीब्यूशन पेमेंट होना चाहिए, यानी जो 0.75% का कंट्रीब्यूशन है वो 1 मंथ पहले तक भी उस वुमेन एम्प्लॉय का पेमेंट होना चाहिए। एंड शी शुड हैव वर्कड फॉर एटलीस्ट 70 डेज इन द ऑर्गेनाइजेशन, पिछले 1 सालों में, सब 12 महीने में एक वो कम से कम 70 दिन तक काम की नहीं होनी चाहिए, तब वो एलिजिबल है मैटरनिटी बेनिफिट उठाने के लिए। समझ में आई बात? अब इसमें भी बहुत सारे डिटेल्स है, वो अवेल कर सकती है। देखो 26 वीक्स का जो लीव है, मैटरनिटी का प्रोविजन कितना है, 26 वीक की छुट्टी पर वो जा सकती है फॉर द फर्स्ट 2 चिल्ड्रन। शुरू के 2 चिल्ड्रन के लिए वो उसको 26 वीक्स का की छुट्टी मिलेगी, एंड दैट इज अ पेड छुट्टी, नो सैलरी विल बी डिडक्टेड और समथिंग, बेनिफिट अलग से मिलेगा। And for subsequent children, अगर उसके बाद if she decides to have more children after 2, then this 26 weeks holiday will go down to 12 weeks. और देखो ESI में एक और अच्छी चीज है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के बारे में सुना है? मैटरनिटी बेनिफिट के बारे में सुना है? अभी हाल में, इसीलिए कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ा करो, थोड़ा बहुत कुछ जानना जरूरी नहीं है, पर एटलीस्ट फॉर कीवर्ड्स कैच करोगे, देन यू विल बी एबल टू रिलेट इट विद योर ओन सब्जेक्ट आल्सो। ओके, तो मैटरनिटी बेनिफिट में भाई मातृत्व लाभ कहा जाता है इसको, कि इफ a woman employee is working in the organization, she is eligible to take maternity leave and go for a holiday because she is not in capacity to work properly. And also a provision is made so that she can remain with her child post delivery. Okay, तो ESI में एक मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, जो कि एक सोशल सिक्योरिटी एक्ट है, क्योंकि मैटरनिटी एक सोशल सिक्योरिटी का पार्ट है, वो एक अलग से है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। लेकिन क्योंकि ESI में भी मैटरनिटी बेनिफिट कवर किया हुआ है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है उस मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में और ESI एक्ट 1948 में। जैसे उस मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में सरोगेट मदर का प्रोविजन नहीं डाला गया, लेकिन ESI में सरोगेट मदर का नहीं है कि for 26 weeks of leave will be given to a woman for the first 2 child, and after the first 2 child for 3rd child, and for surrogate mothers 3 months. ठीक है, 12 months, 12 weeks in case of other delivery, and surrogate mother, जो surrogate mother होगी उनके लिए भी, और जो अडॉप्ट करना चाहेंगी उनके लिए भी 3 months की छुट्टी, अप टू द चाइल्ड इज 3 month, 3 month का जब तक बच्चा नहीं हो जाता है तब तक वो लीव पे रह सकती है। ये मैटरनिटी बेनिफिट में नहीं। चलो हो गया। नेक्स्ट सोशल सिक्योरिटी क्या डाला? मैम डिसेबलमेंट। डिसेबलमेंट है, देखो कोड दिख रहा है, देखो डिसेबलमेंट 2 तरीके का होता है। किसी फैक्ट्री में अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसमें 2 तरीके का डिसेबलमेंट हो सकता है। एक टेम्पररी डिसेबलमेंट हो सकता है कि टेम्पररी आपका हाथ फ्रैक्चर हो गया है, या कोई ऐसी बात हो गई है जिसमें कि ब्रेन का कुछ प्रॉब्लम हो गया है, लंबा कोई बुरा एक्सीडेंट हो गया है, ये टेम्पररी डिसेबलमेंट है। ठीक है, या परमानेंट भी हो सकता है, हाथ कट गया वो परमानेंट डिसेबलमेंट है, वो तो ठीक नहीं होगा। ठीक है, अब देखो जो टेम्पररी डिसेबलमेंट है उसको हम लोग देते हैं 5 साल, उसमें 5 साल का प्रोविजन है कि टेम्पररी डिसेबलमेंट को हम लोग 5 इयर्स कंसीडर करते हैं कि 5 साल तक टेम्पररी डिसेबलमेंट को ठीक हो जाना चाहिए। अगर वो 5 साल में ठीक नहीं होता है, इट ऑटोमेटिकली गेट्स कन्वर्टेड टू डिसेबलमेंट। लेकिन परमानेंट डिसेबलमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला पार्शियल डिसेबलमेंट, पार्शियल डिसेबलमेंट, और दूसरा टोटल डिसेबलमेंट। परमानेंट का 2 टाइप, पार्शियल और टोटल। पार्शियल डिसेबलमेंट उसको कहते हैं जो 100% से कम डैमेज हुआ है ना किसी के बॉडी का, वर्कर के बॉडी का, तो वो शेड्यूल दिया हुआ है इसमें, उसमें कैलकुलेट होता है कि एक उंगली कट गई तो उसका कितना परसेंटेज हुआ, हाथ कट गया तो कितना परसेंटेज हुआ, पैलेंजेस कट गया तो कितना परसेंटेज हुआ, फ्रैक्चर हो गया तो कितना परसेंटेज हुआ, पैर कट गया, थाइस कट गया, तो इस तरीके से पूरा पूरा लिस्ट है उसमें। यू डोंट नीड टू गो इनटू दैट मच ऑफ डिटेल। तो अगर पार्शियल डिसेबलमेंट हुआ
मतलब कि 100% से कम है नुकसान, ठीक है। लेकिन अगर टोटल डिसेबलमेंट हुआ, मान लो कि हाथ और पैर कट गया, तो दोनों का परसेंटेज मिलाओगे तो 100 से ज्यादा भी हो सकता है। तो जो टोटल डिसेबलमेंट होता है वो 100% से ज्यादा होता है। तो दोनों का इसलिए बताया जाता है ये कि क्योंकि इसमें बहुत सारा कैलकुलेशंस है कि इतना परसेंट हुआ तो इतना वेज मिलेगा, इतना फायदा मिलेगा, और ज्यादा हुआ तो ज्यादा पैसा मिलेगा। नेक्स्ट क्या है? मैम डिपेंडेंट। डिपेंडेंट डिपेंडेंट बेनिफिट का मतलब क्या होता है? अगर किसी एम्प्लॉय को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर किसी एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके जो डिपेंडेंट्स हैं, उसके जो घर वाले हैं, वो दे आर एलिजिबल टू रिसीव कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। जो उसका है उसको बेनिफिट मिलेगा। अगर एक्सीडेंट हो गया तो फिर उसका घर कैसे चलेगा, ठीक है। तो उसका भी प्रोविजन इसमें दिया गया है कि जो घर वाले हैं उनको बेनिफिट्स मिलेगा। लेकिन डिपेंडेंट्स में आते कौन कौन है, ये एक फैक्टर था। कौन कौन डिपेंड, देखो डिपेंडेंट्स वगैरह ये सब एक्ट लॉ जो होता है ना, बहुत ध्यान से बनाया जाता है। ये सब देखा है ना कि बेनिफिट्स के लिए झगड़ा हो गया, बेटे से झगड़ा हो गया, माँ से झगड़ा हो गया कि मैं एलिजिबिलिटी हूँ या नॉमिनी में हूँ, ये सब सुना है कि नहीं सुना है? बोलो, somebody say something। यस मैम तो इसीलिए इसको बहुत वाइजली 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। डिपेंडेंट्स को 3 कैटेगरी में बांट दिया। अच्छा, टेल मी वन थिंग, क्या समझते हो? अगर कोई मेल मेंबर फैमिली का एम्प्लॉयड है, ठीक है, एंड he met an accident in the organization factory, पहले डिपेंडेंट के कैटेगरी में कौन आएगा? उसके बीवी बच्चे आएंगे या उसके मदर फादर आएंगे? सोच के बोलना। मैम मदर फादर। बोलो बाकी लोग, बस tell me your opinion, that's it। Who will come in the first मैम category? अकॉर्डिंग टू मी his family, maybe his wife or maybe his daughter or son. वाइफ आती है एंड सन्स एंड डॉटर्स, ठीक है। कैटेगरी ईएसआई में भी कैटेगरी 1 में अगर कोई इस मेल मेंबर इज एम्प्लॉयड एंड ही मीट्स एन एक्सीडेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, द फैक्ट्री, देन द फर्स्ट कैटेगरी ईएसआई में डिपेंडेंट कैटेगरी को 3 कैटेगरीज में डाला गया। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी 3। कैटेगरी ए में कौन कौन आते हैं? वाइफ, ठीक है, but you know that there are religions that permit to have more than one wife, ठीक है। तो wives भी होता है, इसमें पैसा बांट दिया जाता है, they are equally entitled। so wife, sons and daughters in first category। if there is nobody in the first category who is not married, so there is no question of wife and children, then we move on to second category where there are parents, and grandparents, ठीक है, समझ में आई बात? If there is nobody in the second category also, they have died, say imagine they have died, then we move on to third category, category C, जिसमें कि any boy or brother, मान लो किसी ने तुमने पोष बालक वगैरह जो होता है, any boy or brother to whom you want to give your benefit, और any गर्ल या सिस्टर, इसका भी बहुत सारा है, इसमें कंट्रीब्यूशन होता है, तुम लोगों को पढ़ना नहीं है। 2/10% ऑफ द टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ 90% ऑफ द वेज, ये ऐसे कैलकुलेशन होता है। 25 साल तक दिया जाता है, क्योंकि अगर ये सब गवर्नमेंट सोच के बनाती है, अगर एक डेट नहीं फिक्स किया जाएगा कि 25% 25 इयर्स एज तक आप अपने फादर का बेनिफिट उठा सकते हैं, तो क्या होगा ना कि ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, पीपल विल नॉट बी विलिंग टू वर्क। फ्री का पैसा आ रहा है तो पीपल विल नॉट बी विलिंग टू वर्क एंड बिकम इंडिपेंडेंट। एंड डॉटर्स का ऐसा होता है कि बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज दे सीज टू
get this benefit. Now, next क्या है? Funeral benefit में फ्यूनरल बेनिफिट. फ्यूनरल कब होगा? कौन सा सोशल सिक्योरिटी कवर करता है? death. डेथ. तो डेथ हो गई. अब डेथ हो गई तो बहुत गरीब वर्कर्स होते थे, बहुत गरीब लोग होते थे. तो हमारे कल्चर में ये है ना कि डेथ होने के बाद भी जो क्रियाकर्म होता है, that holds very much of importance. तो organization or the government also keeps note of all these things. That after funeral क्या होता है कि 15,000 is given to the eldest son of the family, जो सबसे बड़ा बेटा होता है फैमिली का, eldest son or some other family member. In case there is no son or something, then it is given to some other family members. Funeral benefit में ये होता है कि ताकि उसका क्रियाकर्म अच्छे तरीके से हो जाए, सब कुछ सही से हो जाए. नेक्स्ट बोलो. Medical facility. मेडिकल फैसिलिटी. तो मेडिकल फैसिलिटी में क्या है कि अगर आप बीमार होंगे, इफ यू आर सिक, मतलब सिकनेस कवर किया ये. इफ यू आर अवेलिंग मैटरनिटी बेनिफिट तो भी ये कवर करेगा सोशल सिक्योरिटी. इफ यू आर डिसेबल, इन सारे केसेस में आपको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी, तो ईएसआई हॉस्पिटल्स इन सब चीजों को कवर करेगा. यही है मेडिकल फैसिलिटी. ठीक है. नेक्स्ट नेक्स्ट बोलो. medical facility after retirement. मेडिकल फैसिलिटी आफ्टर रिटायरमेंट. इसमें क्या होता है कि जो लोग रिटायर हो गए, गवर्नमेंट उनका ख्याल रखती है कि इफ यू हैव रिटायर्ड ग्रेसफुली फ्रॉम द फैक्ट्री, आप आपके वाइफ को भी ये फैसिलिटी मिलेगी. आफ्टर रिटायरमेंट आप ये फैसिलिटी टुगेदर विद योर फैमिली यू कैन अवेल at just a very minimal contribution of ₹10 per month. ठीक है. 10 रुपए पर मंथ की कंट्रीब्यूशन से आप वहाँ पर हमेशा, यानी कि 120 रुपए पर साल का हुआ, तो उतना कंट्रीब्यूशन आप अपने आपके अकाउंट से कटेगा और आपको मेडिकल फैसिलिटी वहाँ पर मिलेगी. हॉस्पिटल्स में जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, आप अगर ईएसआई के अंडर कवर्ड है तो आप ये फैसिलिटी उठा सकते हैं. नेक्स्ट बताओ. Rehabilitation facility. देखो, अगर रिहैबिलिटेशन फैसिलिटी में क्या होता है, फैक्ट्रीज में बोला ना कि ये ईएसआई जो थी ये बहुत ज्यादा ये एक हेल्थ इंश्योरेंस की तरह इसको स्टार्ट किया गया था. या व्हेन दिस ईएसआई वाज थॉट अबाउट, दिस वाज थॉट अबाउट गिविंग इंश्योरेंस टू द इंडस्ट्रियल वर्कर्स. तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स में एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते थे, बहुत एक्सीडेंट होता था. तभी तुम कभी डेटा पढ़ना, इंडस्ट्रियल वर्कर्स में उस वक्त कितना होता था accidents. And then when a person lost his limb, he was not useful to either organization, either factory or his family, because he could not be employed with his full capacity anywhere else also, right? तो गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन दिया कि जो लोग ईएसआई में कवर्ड हैं वो अगर 45 years तक है, no, if he is 45 years old, is up to 45 years old, and he has the disablement of up to 40%, वो कैलकुलेशन होता है शेड्यूल से कि कितना लॉस है. देखा है ना कभी फिजिकली हैंडीकैप का सर्टिफिकेट में हमेशा ये मेंशन्ड होता है कि कितने % का डिसेबलमेंट है ना. गवर्नमेंट जब एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट करती है तो वो फिजिकली हैंडीकैप वगैरह के लिए भी तो प्रोविजन लाती है कि वो भी दे सकते हैं, एक अलग कैटेगरी है. तो उसमें क्या होता है कि एक बता दिया जाता है, उसमें कैलकुलेशन होता है कितना % डिसेबलमेंट है. तो ईएसआई में जो रिहैबिलिटेशन फैसिलिटी कहती है वो ये कहती है कि if your age is up to 45 years and your disablement is up to 40%, then the government will provide artificial limb to you as a part of its rehabilitation facility. ठीक है. ठीक है. नेक्स्ट बताओ. Unemployment allowance. अनएम्प्लॉयमेंट बताओ किन किन लोगों को हम अनएम्प्लॉयड कहते हैं. बताओ. आई थिंक यू शुड. Seasonal unemployment.
बताओ। मैम टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ना मैम। नहीं नहीं, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं। मैम जिनको जॉब से फायर किया गया हो वेरी गुड। और जिनको जॉब मिला ही ना हो। बस सही, बस यही पूछ रहे थे। अनएम्प्लॉयड तो दोनों तरीके के लोग हो गए ना। जिनको नौकरी से निकाल दिया गया वो भी अनएम्प्लॉयड हो गए, जिनको नौकरी मिली ही नहीं वो तो अनएम्प्लॉयड ही है ना। तो ईएसआई एक प्रोविजन लाती है। ईएसआई में बहुत अच्छा प्रोविजन है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए फॉर दोज वर्कर्स हु हैव बीन फायर्ड फ्रॉम वर्क, जिनको की नौकरी से हटा दिया गया, टर्मिनेटेड फ्रॉम देयर सर्विस। उनके लिए ईएसआई ये प्रोविजन लाती है कि अगर आपको टर्मिनेट किया गया है सर्विसेज से, देन यू विल गेट 50% of the wage, 50% of the wage that you are getting paid for next 12 months. अगले 12 महीनों के लिए आपको 50% ऑफ द वेज दिया जाएगा। क्यों दिया जाता है? सोचो क्यों क्यों सरकार ने ये सोशल सिक्योरिटी में लाया? क्यों दिया? 1 साल का वेटिंग रूम में अभी भी कोई है? क्यों सोचो कि ये सरकार ने ये चीज प्रोविजन लाया? सोच सकते हो क्या मंशा रही होगी? मैम वो जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है उसके पास कुछ ना कुछ तो स्किल होगा ही नहीं। ठीक से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है। बाकी लोग प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ व्हेन यू वांट टू आंसर, ओनली देन अनम्यूट योरसेल्फ, ओके? देयर इज अ लॉट ऑफ वॉइस इन द बैकग्राउंड। बताओ। हाँ, जो बता रहे थे बताओ। मैम जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है उसके पास कुछ तो कुछ स्किल होगा ही ना, तो वो मे भी कहीं दूसरे इंडस्ट्री में हायर कर सकता है खुद को। हाँ, होता यही है कि जो लोग अनएम्प्लॉयड है उनके लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन लाया कि ठीक है, यू हैव बीन फॉर सम रीजन इफ यू आर टर्मिनेटेड फ्रॉम द सर्विसेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देन फॉर 1 ईयर गवर्नमेंट विल सपोर्ट यू सो दैट यू कैन एम्प्लॉय योरसेल्फ एंड हेल्प योरसेल्फ फाइंड अ न्यू जॉब। ठीक है, ये सारे प्रोविजंस थे जो ईएसआई एक्ट में आते हैं। ये कवर हो गया, तुम लोगों को समझ में आया? इससे ज्यादा डिटेल्स तुम लोगों को पढ़ना नहीं है, कैलकुलेशन वगैरह ईएसआई में बहुत है, वो सब जानना नहीं है, मेन कोर्स में नहीं है। एड ऑन में मुझे ये बोला गया है कि डोंट गो इनटू टू मच डिटेल्स, राइट? तो ये हुआ सारा सोशल सिक्योरिटी कवर हो चुका है इसमें। कैसे कैसे क्या क्या किया जाता है, ईएसआई क्यों आया गया। कभी कोई इफ समबडी क्वेश्चंस यू अबाउट ईएसआई, देन आई थिंक कि अब तुम लोग ये आंसर कर सकते हो कि क्या क्या है। ये सब भी मालूम है कितने लोगों को कवर किया जाता है, क्या क्या प्रोविजन है। ठीक है, समझ में आई बात? देखो, इतना होने के बाद भी हर एक्ट में कोई ना कोई लूप होल रह जाता है। ठीक है, कोई ना कोई लूप होल हर एक्ट में रह जाता है। तो उसी तरीके से ईएसआई को भी क्रिटिसिज्म मिलता है। ईएसआई के बारे में भी थोड़ा सा, इतना अच्छा एक्ट होने के बावजूद ईएसआई में थोड़ा क्रिटिसिज्म होता है। क्यों क्रिटिसिज्म होता है? व्हाट आर द रीजंस फॉर इट्स क्रिटिसिज्म? एक तो ये बोला गया कि जो ₹1, देखो मैंने तुमको 137 वाली बात क्यों बताई, वो भी बहुत बहुत ऐसा नहीं है कि तुमको पूरा पूरा एक्ट लिखना है कहीं जाके, लेकिन जानना चाहिए। 137 रुपीज का जो प्रोविजन है इसमें कि द वर्कर्स हु आर पेड 137 rupees per day up to 137, they are exempted from contribution. उनको contribute करने की जरूरत नहीं। लेकिन क्या 137 इतना ज्यादा रकम होता है क्या? क्या वैल्यू है 137 का? विद टाइम उसकी कोई वैल्यू नहीं। जो 140 कमाते हैं क्या वो बहुत ज्यादा कमा लेते हैं? नहीं कमाते। और आज की डेट में मिनिमम वेजेस का प्रोविजन है। मिनिमम वेजेस का प्रोविजन है तो 137 हार्डली किसी को मिलता है, इसलिए उसको क्रिटिसिज्म में डाला जाता है कि 137 बहुत लोअर ब्रैकेट है जिसको कवर किया गया। ठीक है, दूसरा क्रिटिसिज्म इस एक्ट को क्या मिलता है कि बहुत नैरो कवरेज ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स है, मतलब काफी कम स्कोप है कवर करने का। जैसे कि इस शुरू में मैंने तुमको बताया कि ओनली वर्कर्स ऑफ पेरिनियल फैक्ट्रीज आर covered under this act, right? जिसमें 12 महीने काम होता है। लेकिन ऐसी इंडिया में बहुत सारी फैक्ट्रीज है जो सीजनल है। There are so many factories which are seasonal.
You understand that? ओके दूसरी चीज देखो, ये हम कहते तो हैं कि हाँ ये बेनिफिट है वो बेनिफिट है, जैसे क्या होता है कि वर्कर्स के पास बहुत ज्यादा सरप्लस अमाउंट नहीं होता है सेव करने के लिए, अगर उसके पास एक्सीडेंट हो गया तो उसको फिर इमीडिएट हेल्प की जरूरत होती है, and it is often condemned about, it is criticized about ESI Act that there is often delay in the payment of benefits. ठीक है, पेमेंट जो करते हैं उसमें थोड़ा डिले होता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है दोज हु वांट टू अवेल द बेनिफिट। एक और चीज क्या बोली जाती है इसके बारे में, क्रिटिसिज्म की बात अगर हम करें तो ये बोला जाता है कि ESI हॉस्पिटल्स का जो लेवल है, ठीक है, सर्विस देने का जो स्टैंडर्ड्स है वो बहुत बेहतर नहीं है। देखो पटना में एक ESI, अब जाना तो नोट करना, पटना में एक फुलवारी शरीफ में ESI का हॉस्पिटल है, एक दीघा में है, ठीक है, और एक ESI हॉस्पिटल बिहटा में बन रहा है which is like really huge, 14 फ्लोर है या ऐसा है कुछ, लेकिन पटना में एज ऑफ नाउ जो ऑपरेट कर रहा है वो फुलवारी में है और दीघा में। अब कभी जाना उधर से क्रॉस करना तो देखना कि ESI हॉस्पिटल क्या है, कहाँ है, क्या है, ये सब चीजें ध्यान रखा करो और न्यूज़पेपर पढ़ा करो। जरूरी नहीं है न्यूज़पेपर रटने की जरूरत है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे ना अपने सब्जेक्ट के साथ साथ, थोड़ा सा ऐसे थ्योरी की तरह हर चीज पढ़ोगे तो फिर वो वैसे ही साफ हो जाएगा एग्जाम के बाद। थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ो और सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है, there's no need to understand everything, इसलिए स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ो, बस पढ़ो कि हाँ चेक 4-5 वर्ड्स याद रहेगा, कभी कुछ देखोगे तो you will be able to relate it कि अच्छा मैंने पढ़ा था, इसका मतलब ये होता है, उसका मतलब, that is the only way of improving your awareness। ठीक है, तो ESI हॉस्पिटल्स के बारे में ये बात बोली जाती है कि बहुत अच्छा स्टैंडर्ड्स नहीं है, इसलिए जो इलाज होता है, जो डॉक्टर्स हैं वो फुल फ्लेजेड उस चीज का उतनी कैपेसिटी में नहीं मिल पाता है, तो ये कंडेम किया जाता है ESI के बारे में, राइट। तो विद दिस वी कंप्लीट ESI। समझ में आया? आई होप ESI थोड़ा तुम लोगों को समझ में आया होगा। आया? यस यस मैम। आया ना? अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्रेचुटी शुरू करते हैं, ठीक है, वो भी डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस ऊपर ऊपर हम तुमको बताएंगे कि कैसे क्या होता है। तो बी रेडी फॉर योर नेक्स्ट क्लास, ग्रेचुटी पढ़ के आओगे सब, ओके। थोड़ा बहुत एकदम डिटेल करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत पढ़ के आना कि कैसे क्या क्या वर्ड्स का मतलब, एक दो वर्ड, बाकी आई एम देयर टू टेल यू एवरीथिंग। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।